Good afternoon to all. Can you hear me? Good afternoon, sir. Yes, Good sir. afternoon, sir. Okay. Yesterday night, I gave you the link, YouTube link in the Google Classroom, as well as one instruction set. Only 13 people are accept the invitations. I sent the invitations to every people, every students, but only 13 people are accepted till now. Now is 23 is present, but in Google Classroom only 13 is present. Without accepting these invitations, you cannot get the the YouTube video link, and whatever the notes I will be give, you cannot get it. So accept the link, otherwise it will not be possible at all. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. बहुत जन नहीं किया है, उन लोगों को बोलो जो जल्दी से उसको स्क्रीन को ये इसको एक्सेप्ट कर लेने के लिए, अदरवाइज इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द डेटा। मैंने सारा कुछ दे दिया यस्टरडे नाइट में। मैंने 2 क्लास जो हुआ उसका यूट्यूब लिंक तुम लोग मिल गया होगा शायद, क्या? सर व्हाट्सएप पर आया था यूट्यूब लिंक। यूट्यूब का वीडियो लिंक मैंने तुम्हारा जो गूगल क्लासरूम बनाया ना, सर गूगल कोड दे देते। एम्प्टी है। हैं? गूगल क्लासरूम तो एम्प्टी है सर। नहीं है, उसमें वीडियो है। वीडियो गूगल है, क्लास में वीडियो है सर, 2 वीडियो है। हाँ 2 वीडियो है और एक मटेरियल है। एक मटेरियल है, वो जो इंस्ट्रक्शन सेट मैंने बोला था वो सब है। लिखना पड़ेगा तुम लोग। So can I proceed? Can I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any queries from the previous day? So I can explain, then I go to the next. I think there is no query, so I am just proceed. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. So I am proceed. First, today I will be discuss the pin configurations, pins. In 8085, there is a IC. 8085 is nothing but a microprocessor, is nothing but a IC. IC means Integrate circuit. Integrated circuit. इंटीग्रेटेड सर्किट। so. This is a nothing but a 40 pin IC. Okay, I just एक 40 पिन IC is a 8085 40 पिन 8085. Okay, so this is pin number 1, this is pin number 20, 21, and this is 40. So total is 1 to 40. There is a 40 pins,
you will be get 1 to 20, 21 to 40. Clear to everyone? Yes, sir. Within this 40 pin, we are categorized in a several group. We are categorized into the several group. All the pins are categorized into the several groups. Write down, otherwise you will be unable to understand. Within this 40 pins, we are categorized all the pins into several groups. Those are as follows. Number 1, address bus. Number 2, data bus. Number 3, control and status signal. Number 3, control and status signal. सर एक बार रिपीट कीजिएगा शुरू से. All the pins of 8085 are classified into several groups. All the pins of 8085 are classified into several groups. Those are as follows. Number 1, address bus. Number 2, data bus. Number 1, address bus. Number 2, data bus. Number 3, control and status signal. Control and status signal. Number 4, power supply and frequency signal. Number 4, power supply and frequency signal. Number 5, externally initialization signal and interrupt. Externally initialization signal and interrupt. Number 6, serial IO port. Number 6, serial IO port. Serial IO port, input output port. Serial IO, IO ऐसा लिखता है I/O. सर नंबर 5 रिपीट कर दीजिएगा एक बार. Number 5, externally initialization signal and interrupt. 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 Okay. Yes, sir. All complete. How many groups are there? 6. 6. Okay. 6. Sir, how many address bus available in 8085? 32 bit. How many address bus? कितना बिट का एड्रेस बस है 8085 में? 32. 32. Your mundu and our matha. 16 bits sir, 16 bits. 16 bit सर. 16 बिट. हमने ऐसा बहुत कुछ गलत फलत बोलेंगे, हमारा बातों में बात बोलना. हाँ. एड्रेस बस कितना बिट का है?
16 bit. 16 बिट। अच्छा, तुम्हारा क्लासरूम जो है उसमें कितना दरवाजा है? डोर? 2. टू डोर्स है। अभी मान के चलो हम वो एक डोर के जगह में पूरा दीवार करते थे तो हमारा पैसा थोड़ा कम लगता था। कितना कम लगता था? नियर अबाउट 5,000। नियर अबाउट 5,000 will be saved. Near about 5,000 will be saved. Is it clear? 5,000 रुपया बच जाता था। हम एक मतलब डोर के जगह में हम दीवार करते थे। 2 दरवाजे क्यों है? हम बनाया है, ऐसा नहीं है, मगर बाकी टीचर के पास मत बोलना। एक है क्लास में घुसने के लिए, दूसरा है क्लास से निकालने के लिए। मान के चलो एक साइड से घुस जाएगा सामने से और पीछे से निकल जाएगा, इसीलिए 2 दरवाजा किया हुआ है कि नहीं? My agenda is clear to you? Yes, There is sir. a 2 door, one Yes, is incoming and another is outgoing. क्लास अच्छा नहीं लगेगा, पीछे दरवाजे से चला जाओ, हो गया। तो आना जाना के लिए दोनों अलग अलग डोर है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक ही डोर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे पॉसिबल होगा? एनी आइडिया? उस टाइम में भी आना जाना करेगा। अभी दरवाजा मान के चलो छोटा है, आएगा तो जा नहीं सकते, जाएगा तो आ नहीं सकते, मतलब एक एक आदमी घुस सकता है। तो कैसे क्या करेंगे? कोई सॉल्यूशंस आपके मन में? हैं? एक I have only one door which may be used as a incoming and outgoing both. I have only one door which may be used as a incoming and outgoing both. How it's possible? Any idea? Sir, one by one we can go and come. No. Sir, तुम्हारा क्लास कितना मिनट का होता है? 50 50 50 50 minutes. मिनट का। मैंने क्या किया, इसको दोनों पार्ट में डिवाइड किया। मैं बोल रहा था पहला 20 मिनट्स इनकमिंग, नेक्स्ट 30 मिनट यू कैन गो, देन नो वन कैन कम इन द क्लास। पहला 20 मिनट तक कोई भी आ सकता है, नेक्स्ट 30 मिनट में कोई आएगा नहीं, सब जा सकता है। तो एक दरवाजे से काम चल जाएगा? यस और नो? Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस डोर इज नथिंग बट ए टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्स। This door is time division multiplex, means with respect to the time, this door will be act as a input and this door act as a output. With respect to the time, this door will be act as a input and this door will be act as a output. That is the difference between, with respect to the time, this door will be used as a, incoming and outgoing both. It's clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं? TDM। फुल फॉर्म याद रहेगा? टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्स। टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्स। इसमें हमारा कितना पैसा बच जाएगा? 5,000. 5,000, राइट? दरवाजा भी 2 नहीं करना पड़ेगा, एक ही करना पड़ेगा। सिमिलरली माइक्रोप्रोसेसर में जितना सारा पिन है उसके लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल, तो इसके लिए क्या कर सकते थे हम लोग? आईसी का साइज बढ़ा सकते थे, देखने भी अच्छा नहीं लगेगा, खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो एड्रेस बस है इसका नाम है A02 A15। कितना होता है A02 A15? A0 से लेकर A15, A0 A1 कितना होगा? 16 bit. 16. एज 16 बिट एड्रेस बस। सो देखो इधर 16 मैंने लिख दिया, राइट?
सर डेटा बस कितना बिट का है? 16 बिट का है। 8 बिट सर। 8 बिट का है, ठीक है, तो 8 बिट ही कर दिया। तुम जो बोलोगे वही होगा, हमारा बात में नहीं होगा। तो ये जो एड्रेस बस है, it will be dividing into the two part. One is called higher order address bus, another is called lower order address bus. A0 to A7 is called lower order address bus. Higher order address bus is nothing but a A8 to A15. Higher order address bus is A8 to A15 and lower order address bus is A0 to A7. It's clear to all? इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर। हायर ऑर्डर मतलब A8 to A15, उधर भी 8 बिट चला गया। लोअर ऑर्डर मतलब A0 to A7, उधर में भी 8 बिट चला गया। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Address bus is A0 to A15, which is dividing into the two part. One is A0 to A7, another is A8 to A15. A0 to A7 को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। 8 to 15 को क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ओके, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस। These lower order address bus are multiplex TDM. These lower order address bus are TDM with data bus. Data bus का नाम क्या था? D0 to D7. डेटा के लिए D, एड्रेस के लिए A. डेटा के लिए D, एड्रेस के लिए A. So data bus is name is D0 to D7. So address bus time division multiplex with data bus D0 to D7 and create AD0 to AD7. Create AD0 to AD7. It's clear to all? सर रिपीट कीजिए सर, 1 सेकंड। डेटा एड्रेस बस का नाम क्या बोला मैंने? A0 to A15। यस सर। 16 बिट का है। डेटा बस कितना बिट का है? 8 बिट। 8 बिट। उसका नाम हो गया D0 to D7, राइट? एड्रेस बस जो है इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किया। एक को बोलते हैं हम लोग हायर ऑर्डर एड्रेस बस, दैट इज A8 to A15, एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस A0 to A7। ये जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस आर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स AD0 to AD7, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स एंड क्रिएट AD0 to AD7। इन दोनों एक साथ जोड़ के तैयार करता है AD0 to AD7। Just like your door, input and output both. Just like your door, input and output both. So I have a questions to you. ये जो डेटा बस है इसका जो नाम हो गया D0 to D7, ये जो एड्रेस का नाम हो गया A0 to A7, दोनों के एक साथ मिलाया तो क्या हो गया? AD0 to AD7। तो ये कितना पिन हो गया? 8 पिन। 8। ये कितना पिन है? 8 पिन। टोटल कितना होगा? 16 पिन। 16 पिन। तो देखो ये दोनों मिला के 16 पिन हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। 16 यस सर। बोलो। सर समझ नहीं आया। सुनाई नहीं दिया? समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया। समझना ना बहुत अच्छा है। क्या सही कि नहीं? अरे सही है तो सही बताओ। सही नहीं है? सही बोले सर। सही, समझ नहीं आना सही है। अरे हाँ में हाँ मिलाओ, और क्या, हम सब सही सही बोलते हैं। A0 to A7 and A8 to A15, इज इट क्लियर? ये टोटल एड्रेस बस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। ओके यस सर। और इधर डेटा बस है D0 to D7, इसको कुछ डिवाइड नहीं किया।
इसको सीधा ले लिया D0 to D7, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया यूजिंग TDM, एंड जो तैयार हुआ उसका नाम हो गया AD0 to AD7। देखो A भी है, D भी है, 0 भी है, 7 भी है, मतलब AD0, AD1, AD2, AD3 up to AD7। इट्स क्लियर Yes, sir. ना? तो बोलो। सर बोल रहा हूं, हाँ सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। आपने बोला कि 40 पिंस होते हैं और एड्रेस बस के लिए आपका 16 पिन हो गया, डेटा बस के लिए 8 पिन, तो क्या आप टीडीएम बोल रहे हैं कंबाइन है, तो मतलब कि एड्रेस पिन बस घट गया, पिन घट गया। पिन घट गया सर। हमारा एड्रेस बस कितना बिट का था? 16 16 bit. डेटा बस कितना बिट का था? 16 बिट का था। 8 bit. 8 sir. 8. 8 bit sir. 8 तो 16 8 कितना हो गया? 24. 24. देखो ये 24 बिट के जगह में हम 16 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही हमारा मकसद है। यस सर। 24 बिट को हम 16 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हमको पहले 24 तो पिन लगना चाहिए था, अभी हमारा टीडीएम करने के बाद विल बी रिक्वायर्ड ओनली द 16 पिन। यस सर। ये हमारा टारगेट है। छोटा करेंगे, कॉस्ट कम होगा, देखने भी अच्छा लगेगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes sir. मैं फिर से बोल रहा हूं, Yes sir. एड्रेस बस का लोअर ऑर्डर एंड डेटा बस का डेटा बस पूरा दोनों एक साथ टीडीएम करता है, फुल फॉर्म टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स, एंड जो तैयार होता है उसका नाम है AD0 to AD7। AD0 to AD7। इट्स क्लियर? Yes, sir. यस सर सर। 24 बीट से 16 बीट करने का एडवांटेज सर? एडवांटेज क्या है? पिन कम कर दिया, पहले Yes, 24 पिन लगना चाहिए था, उसका 16 पिन किया, तो जो आईसी का साइज होगा वो थोड़ा छोटा होगा, आईसी Compact जितना होगा ना। बड़ा होगा उतना कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा, प्लस देखने भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। यस इसको एक साथ नहीं करते थे तो पिन नंबर होता था 48। और भी दूसरा पिन है ना, हम आएंगे, ये तो 16 पिन के बारे में अभी बोल रहा हूं। इज इट क्लियर और नॉट? यस किसी का मन में कोई डाउट्स है तो बताओ। तो दरवाजा जो मैंने बोला था उसको क्या बोला था? दिस दरवाजा विल बी एक्ट एज ए समटाइम एज ए इनपुट एंड समटाइम एज ए आउटपुट, राइट? यस सर। यस तो AD0 to AD7 को मैंने क्या बोलूंगा? Incoming. इसके अंदर एड्रेस है, इसके अंदर डेटा है। बोथ सर, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। ना इनकमिंग आउटगोइंग तो है, वो तो दरवाजा के लिए था, एग्जाम्पल था। अभी इधर मैं क्या बोलूंगा? टीडीएम सर। में डाटा भी होगा और एड्रेस बस भी होगा। डाटा बस भी होगा, एड्रेस बस भी होगा। वेरी Sir, गुड। both address bus and data bus. बोथ एड्रेस बस एंड डेटा बस। वेरी गुड। देखो समीर कुमार, आर यू हियर मी? यस सर। Samir Kumar is very good, the player in football, and he is basically goalkeeper. So whenever Samir treated as a goalkeeper, then this hand will be treated as a to save the ball. Yes, But sir. now Samir is a student, so this hand is used for writing. Writing. So depend upon the situation, Samir hands will be changed. So depend upon the time, AD0 to AD7 will be act as a address bus or data bus. Depend upon the time, AD0 to AD7 will be act as a address bus or act as a data bus. Is it clear? यस सर। Yes sir. Yes, sir. Clear to all? यस सर। Yes sir. Can I proceed? यस Yes, sir. ये जो दरवाजा है ना, अंकिता बहुत चालू है। अंकिता क्या करता है, हर एक दिन 10 मिनट के बाद आ जाता है क्लास में।
ना 20 मिनट बोला ना मैंने, सॉरी 20 मिनट तुम आ सकते हो। अंकिता हर एक दिन आता है 25-26 मिनट में क्लास में, तो ये तो बहुत मुश्किल होता है। वो बोलता है सर हमारा घड़ी में देख रहा है अभी सर 20 मिनट नहीं हुआ, घड़ी स्लो करके आ जाता है ना, चालू है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी अमित मेहता को लगा दिया एज ए CR। तुम देखना 20 मिनट के बाद हमारे पास आना मत, वो जो आएगा उसको बोलता ना घर चला जाने के लिए, बाहर से ही, अंदर घुसने का जरूरत नहीं है। 20 मिनट तक आने के लिए और 20 मिनट के बाद जाने के लिए। तो अमित मेहता इज नथिंग बट हैव ए बेल, बेल माने घंटा, जो पहले स्कूल में पढ़ता था ना, ढंग ढंग ढंग, अमित मेहता 20 मिनट के बाद घंटा बजा देगा, मतलब और कोई नहीं घुस सकता, अभी जा सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये जो अंकिता है, अंकिता का काम करता है ALE सिग्नल, अंकिता का काम करता है ALE सिग्नल, ALE एड्रेस लैच एनेबल, ALE एड्रेस लैच एनेबल। ओके, एड्रेस लैच एनेबल, एड्रेस लैच एनेबल। ये कितना देर तक A02 A7 के हिसाब से काम करेगा, that will be decided by ALE. AD02 AD7 how much time act as a address bus, that will be decided by ALE signal. AD02 AD7 how much time act as a address bus, that will be decided by ALE signal. Full form of ALE is address latch enable. Full form of ALE is address latch enable. कितना देर तक AD02 AD7 act as a address bus, that will be decided by ALE signal. It's clear? Yes, sir. Yes, sir. सर अमित मेहता के पास Yes, क्या sir. था? क्या था? घंटा घंटा इसके पास क्या है? हाई एंड लो। इसके पास क्या है? अमित मेहता का नाम है ALE, इसके पास है हाई और लो, हाई और लो। जब तक हाई रहेगा तब तक इट विल बी एक्ट एज ए एड्रेस बस। जब तक ALE सिग्नल हाई रहेगा तब तक AD02 AD7 एक्ट एज ए एड्रेस बस, A02 A7। ALE सिग्नल हाई मतलब AD02 AD7 act as a address bus. Is it clear? जब तक फील्ड में रहेगा Yes, sir. समीर कुमार रजक का हाथ यूज होगा एज ए टू सेव द बॉल। जब तक हमारा क्लास में रहेगा समीर कुमार रजक का बॉल हाथ यूज होगा एज ए राइट एनीथिंग। इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes sir. So basically ALE signal is high means A02 A7, AD02 AD7 act as a A02 A7. ALE signal low means AD02 AD7 may be act as a data bus. सुमीर कुमार रजक का सिर्फ हमारा क्लास एंड गोलकीपर छोड़ के ऐसा काम नहीं है, ऐसा मत सोचो। समीर कुमार कभी कभी घूमने भी जाता है, उस टाइम में गोलगप्पा भी खाता है, वो हाथ तभी खाना भी लेता है। Is it clear? Is it clear to all? Yes, sir. मतलब ALE सिग्नल हाई होने से AD02 AD7 act as a address bus. Clear? Yes, sir. Can I proceed? Yes, sir. Yes, sir. सर मैंने बोला था बास एक ही साइड में जा सकते हैं, ट्रेन दोनों साइड में जा सकते हैं, बोला था ना? याद है वो स्टोरी? Yes, sir. Wow, very good. So address bus is bidirectional, am I right? No, sir. Unidirectional. Unidirectional database is Bidirectional. Wow. Sir. Beautiful. हाँ बोलो। AD0 AD7 किस केस में हाई होगा? AD0 To AD7. AD7 किस केस में हाई होगा? AD0 to AD7 हाई नहीं होगा, इससे डेटा जाएगा और एड्रेस जाएगा। ALE सिग्नल होने से ये काम करेगा एज ए एड्रेस बस। ALE सिग्नल लो होने से जब हाई सिग्नल में रहेगा तब ना सर? हैं बोलो
सर ALE हाई सिग्नल में रहेगा तब ना AD0 to AD7 जाएगा। AD0 to AD7 तब काम करेगा एज ए एड्रेस बस। अच्छा तुमको एक दूसरा स्टोरी सुनाता है। सर शुरू में दूसरा बताया था। शुरू से पता है? नहीं, शुरू में आप दूसरा कुछ बताया। क्या क्या बोला, बोलो। उस केस में हम पता है 80 AD7 जब हाई होगा तो उस केस में ना ना ना, AD0 to AD7 हाई नहीं होगा, ये तो मीडियम है। ALE सिग्नल जब हाई होगा, जैसे अमित मेहता के पास बेल था, ऐसे AD0 to AD7 के पास ALE सिग्नल है। ALE सिग्नल हाई होने से इट विल बी एक्ट एज एड्रेस बस, दैट इज A0 to A7। ALE सिग्नल लो होने से ये D0 to D7 के हिसाब से काम कर सकता है। एग्जाम्पल तुमको और एक दे रहा है, रुको। रेनकोट किसके पास है? समीर तुम्हारे पास रेनकोट है? यस सर। रेनकोट देखे हो कभी? मतलब पहने हैं, वेरी गुड। तो ये जो रेनकोट है कब तुम लेकर जाते हो? बारिश के टाइम सर। बारिश का टाइम। मतलब तुम रेनकोट लेकर नहीं जा रहे हो, मतलब बारिश नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? बारिश हो सकता है ये सोच के तुम रेनकोट लेकर जाते हो। मतलब इफ स्काई इज हाई देन यू कैरी योर रेनकोट। इफ स्काई इज नॉर्मल और हॉट देन यू कैनॉट कैरी द रेनकोट। जस्ट लाइक दैट, ALE सिग्नल हाई होने से तब इससे जो जाएगा सारा जाएगा A0 to A7, राइट? ओके सर। यस सर। और एग्जांपल सर ये हाई कब होगा? ये हम लोग जब करेंगे, एक नियम है, अभी हम नहीं बोल रहे हैं, मगर एक मशीन साइकिल का एक टी स्टेट का फैक्टर है। हर एक मशीन साइकिल का शुरुआत में ही ये ALE सिग्नल हाई होगा, तब एड्रेस के बाद सबसे काम करेगा। रेस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी एक्ट एज ए डेटा बस, मे बी। Ankita, you have a bag to carry the Yes, sir. books? Yes, sir. कंधे में जो लेता है। है सर। अच्छा, तुम एक कॉलेज में लेकर आते हो हर एक दिन? यस सर। वेरी गुड। अंकिता, तुम जब घर जाते हो बैग लेकर जाते हो? यस सर, जाते हैं। उस टाइम में क्या रहता है बैग के अंदर? बुक ही रहता है? झूठ मत बोलना। बुक भी सर, बुक भी रहता है और कपड़ा भी रहता है। कपड़ा भी रहता है, एग्जैक्टली यही हमको चाहिए था। तो देखो, एक ही बैग अंकिता के पास है, वो कभी कभी यूज होता है टू कैरी द बुक्स, कभी कभी यूज होता है टू कैरी द क्लॉथ्स, कभी कभी इट विल बी एक्ट एज ए टू कैरी द बुक्स, कभी कभी इट विल बी यूज्ड एज ए कैरी द क्लॉथ्स। तो कब बुक होगा, कब कैरी होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय अंकिता, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय वेदर शी इज गोइंग टू कॉलेज और शी इज गोइंग टू होम। Similarly, AD0 to AD7 act as an address bus or act as a data bus, that will be decided by ALE signal. ALE signal high होने से it will be act as an address bus, ALE signal low होने से it will be act as a data bus. It's clear? Clear to all? Yes, sir. यस सर। सर एनी डाउट है तो बताओ। अभी जो बोल रहा था एड्रेस बस क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है ना? सर यूनिडायरेक्शनल होता है। डेटा बस क्या होता है? बाय डायरेक्शनल होता है। एड्रेस बस ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, डेटा बस और बाई डायरेक्शनल। बट रिमेंबर दैट AD0 to AD7 it will be nothing but a bi-directional bus. क्यों? इसके अंदर एड्रेस भी है, डेटा भी है। अभी बाई डायरेक्शनल मतलब क्या? उसके अंदर यूनिडायरेक्शनल भी है, राइट? यस सर। बाई डायरेक्शनल मतलब उसके अंदर यूनिडायरेक्शनल भी है।
तो Yes, ये sir. जो ये जो buses रहता है AD0 to AD7, that will be as a bidirectional bus. But remember, 8 to A15 is always unidirectional in nature. As address bus is unidirectional, so 8 to A15 is always unidirectional in nature. It's clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Sir, once more, sir. Once more. Address bus always unidirectional होता है. Address bus always एक ही साइड में जा सकते हैं, रिवर्स साइड में नहीं जा सकते. Is it clear? Yes, sir. Yes. Data bus always bidirectional, दोनों साइड में जा सकते हैं. Data bus always bidirectional, दोनों साइड में जा सकते हैं. तो data bus bidirectional, address bus unidirectional. तो जो क्रिएट किया है एड्रेस प्लस डेटा वो है बाइडायरेक्शनल. बाइडायरेक्शनल होगा तो यूनिडायरेक्शनल भी उसके अंदर है, अलग से यूनिडायरेक्शनल बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है. जो मल्टीप्लेक्स बस है, दैट इज AD0 to AD7 है, इट इज नथिंग बट ए बाइडायरेक्शनल बस. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. Okay. एंड 8 to A15 इसके साथ तो किसी का मल्टीप्लेक्स नहीं है. एज एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल, सो ए भी यूनिडायरेक्शनल ही होगा, एक ही साइड में ही जा सकता है. ओके Yes, sir. अच्छा, इसको आज नहीं लिखा रहा है. हम कोशिश, हमारे पास देखो किसी कोई नोट्स फोर्स नहीं है, ठीक है, हम पढ़ाते हैं ब्रेन से, वो नोट्स हमारे पास नहीं है. हम देखते हैं पुराना कोई स्टूडेंट का नोट्स बुक मिल जाए तो हम वो स्कैन करके तुम लोगों को दे देंगे. हमारे पास कुछ नोट्स नहीं है, जो बोलता है वही नोट्स, स्टूडेंट लोग वही लिखता है वही नोट्स. तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं नोट्स है कि नहीं है. नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट दिन हम ये सब बोल देंगे, तुम लोग लिख लेना. अभी आज सब सिर्फ समझा दे रहा है, ठीक है. ओके सर. Yes, sir. ओके सर. लिखने से बहुत टाइम चला जाएगा. ये समझ में आया ना, एड्रेस बस डेटा बस? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. Sir, it means that A0 to A7 is a bidirectional, sir. A0 to A7 बाइडायरेक्शनल नहीं है, A0 to A7 यूनिडायरेक्शनल है. बट जब तैयार हो गया A0 to A7 एंड D0 to D7 मिला के AD0 to AD7, वो है बाइडायरेक्शनल. Yes, sir. वो है बाइडायरेक्शनल. देखो, एड्रेस बस डेटा बस, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 इज डिस्कस. पॉइंट नंबर 3 क्या था? पॉइंट नंबर 3 Control and status signal. कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल. वेरी गुड. पॉइंट नंबर 3 में पहला सिग्नल है ALE, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है. क्या फंक्शंस है एक बार हम बता देते हैं. फुल फॉर्म इज एड्रेस लैच एनेबल, used to enable the address bus, used to latch the address bus from multiplex address oblique data lines. Whenever ALE signal is high, then AD0 to AD7 act as a address bus. Whenever ALE signal is high, then AD0 to AD7 act as a address bus. Is it clear? Clear? Yes, sir. जब तक ALE सिग्नल हाई रहेगा तब तक AD0 to AD7 एक्ट एज ए एड्रेस बस. ओके ओके. Yes, sir. नेक्स्ट, सर. IO ऑब्लिक M बार, IO ऑब्लिक M बार. सर एक चीज याद रखना, जिसके ऊपर में बार रहेगा it will be act as a low signal, it will be activate as a low signal. जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा activate in high signal. जिसके ऊपर बार रहेगा activate in low signal. जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा activate in high signal. It's clear? Yes, sir. Yes, sir. I'm repeat once again. जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा it will be act as a High signal. हाई सिग्नल. जिसके ऊपर बार रहेगा वो एक्टिव इन लो सिग्नल. अभी देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है. IO फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट, M का फुल फॉर्म है मेमोरी, IO का फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट, M का फुल फॉर्म है मेमोरी.
whenever this signal goes low, memory operations will be performed. When this signal goes high, input output operations will be performed. Whenever this signal goes low, memory operations will be performed. When this signal goes high, input output operations will be performed. Is it clear? कौन सा सिग्नल हाई या लो जा रहा है अभी? आयो वही तो कुछ सर नहीं जा रहा सिग्नल है नहीं सर। आयो ऑब्लिक इन बार जब लो होगा, देन मेमोरी ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म. आयो ऑब्लिक एम बार व्हेन इज हाई, देन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म. सर यहाँ पे एम पे बार है, मतलब एम पर जो है लो सिग्नल है। लो सिग्नल मतलब मेमोरी ऑपरेशन होगा एट लो सिग्नल. आयो के ऊपर हाई नहीं है, मतलब हाई सिग्नल होगा तब आयो के हिसाब से काम करेगा, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन काम करेगा. इज इट क्लियर? यस सर। अभी तुमको जो क्वेश्चंस करना था मगर तुम लोग कोई किए नहीं. सर मेमोरी ऑपरेशंस क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या है, सब जानते हो शायद. हाँ सर बता दीजिए सर। तो तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं, हम ही क्वेश्चन पूछे और हम ही आंसर करे. सर आईओ और ऑब्लिक एम जो है उसको सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा? एएलई ना, ये सब सिग्नल प्रोवाइड करेगा माइक्रो प्रोसेसर. ये माइक्रो प्रोसेसर का जैसे 16 पिन पहले बोला ना, 16 पिन हो गया ना. AD0 to AD7 8 पिन एंड A8 to A15 कितना पिन हुआ? 16 पिन हुआ. 16. अभी ये है 17 नंबर पिन ALE, ये है 18 नंबर पिन. ऐसे करके हम 40 पिन बताएंगे. अलग अलग पिन है सर, अलग अलग फंक्शन है. यस सर. तुम गूगल में जाकर पिन कॉन्फ़िगरेशन, पिन डायग्राम ऑफ 8085 बोल के सर्च देना, तुमको 40 पिन का डायग्राम दिखा देगा. याद करने का कोई जरूरत नहीं है, मगर पिन का फंक्शन जानना जरूरी है. कौन सा पिन कितना नंबर में है वो जानने का जरूरत नहीं है. पता नहीं है तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा झारखंड में क्वेश्चंस कर सकते हैं, मगर ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है कभी, मैं कभी नहीं देखा. मगर कौन सा पिन का क्या फंक्शन है वो जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा. उसके ही हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं. हम अभी 18 नंबर पिन में है, 18 नंबर पिन चल रहा है. अभी भी और 22 पिन इसके बाद बाकी है. So clear? Can I proceed for the next? यस सर. क्या है सर ऑपरेशन बता दीजिए, इनपुट आउटपुट मेमोरी. तो तुम लोग तो क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, हम कैसे बोले? जो तुम क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर देंगे, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो क्यों देंगे? अच्छा बोल देते हैं. मेमोरी लोकेशंस क्या क्या था मैंने पिछला दिन बताया था. 0000 से स्टार्टिंग है, किधर खत्म है? FF में खत्म है. ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन थे, पूरा मेमोरी लोकेशंस. मतलब मैंने जो बोला था तुम लोगों को, तुम्हारा पास मेमोरी लोकेशन कौन सा है? तुम्हारा घर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इट्स क्लियर? तुम्हारे पास मेमोरी लोकेशन मतलब तुम्हारा घर है. इज इट क्लियर? यस सर. यस तो तुम्हारे पास मेमोरी लोकेशन मतलब तुम्हारा घर है. मतलब घर में एक घर से दूसरा सामान लेकर जाओ, एक घर से दूसरा सामान लेकर जाओ, वो जो है वो सारा का सारा है मेमोरी ऑपरेशंस. मतलब एक मेमोरी लोकेशन से दूसरा मेमोरी लोकेशन में जाओ, सारा के सारा मेमोरी ऑपरेशंस है. ठीक है. अभी किसी किसी का हाथ रहता है, किसी किसी का हाथ रहता है, सबका हाथ रहता है, ऐसा बात नहीं है. तो मान के चलो घर में कोई सामान बाहर से आया, घर में कोई सामान बाहर से आया, तब इज ए नथिंग बट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और डिटेल्स में समझोगे जब लास्ट में हम आईओ डिवाइसेस पढ़ाएंगे, 8255 पढ़ाएंगे, तब तुमको पता चलेगा. बट अभी ये मान के चलो बाहर से कोई जो सामान आ रहा है, इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन बोलते हैं. जब मेमोरी लोकेशन से मेमोरी लोकेशन कुछ जा रहा है उसको मेमोरी ऑपरेशंस बोल रहे हैं. एक मेमोरी डेटा कॉपी किया दूसरा मेमोरी लोकेशंस में, दैट इज द मेमोरी ऑपरेशंस. मेमोरी लोकेशन में सर इसका मतलब हुआ कि इनपुट अंदर में ही अपना एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे, दूसरी जगह में ले सकते हो. और बाहर से कोई लेकर आ रहे हो तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. जब 8255 पढ़ाएंगे तो और डिटेल्स में समझ में आएगा.
तो आई ऑब्लिक एम बार क्लियर? नो सर। ये नो सब सर। नहीं समझ में आया? नहीं आया सर। नहीं आया। सर आईओ एम है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, एम है मेमोरी ऑपरेशंस। ये सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के एंड से जब लो हो जाएगा तब मेमोरी ऑपरेशंस होगा। ये सिग्नल जब हाई होगा तब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होगा। whenever IO oblique M bar signal is low, then memory operation. Whenever IO signal is high, IO oblique M bar signal is high, then it will be input output operations. देखो इसके ऊपर बार नहीं है, means it will be act as a high signal. Whenever high, input output operation. Whenever low, it's memory operations. It indicate whether the microprocessor performing memory operations or input output operations. Clear? सर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ऑपरेट करना। इनपुट आउट डिवाइस से डेटा आ रहा है और इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा बाहर जा रहा है। यस सर। क्लियर सर। क्लियर? यस सर। अनदर अच्छा आगे बोल देते पहले। आरडी बार मतलब हम बोल रहे हैं पिन नंबर कितना अभी 19, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, अलग पिन है। सर कॉपी को ऊपर कीजिए सर, दिख नहीं रहा। क्या दिख नहीं रहा है? आरडी बार तो दिख रहा था, हम कंप्यूटर में दिख रहा है कितना दूर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आरडी बार ऊपर में बार मतलब क्या है? लो सिग्नल। लो सिग्नल। एक्टिव इन लो सिग्नल। एक्टिव इन आरडी का फुल फॉर्म है रीड। आरडी का फुल फॉर्म है रीड। When this signal goes low, microprocessor will be perform read operations. When this signal goes low, microprocessor perform read operations. When this signal goes low, microprocessor perform read operations. Is it clear? When this signal goes low, microprocessor perform read operations. Read पढ़ रहा है। सर क्या? क्या पढ़ रहे? सर क्या रीड? क्या रीड? ये जो डेटा है ना सर मेमोरी लोकेशंस में, ये जो डेटा है ना मेमोरी लोकेशंस में, ये सारा रीड। रीड मतलब तुमको एग्जांपल दे रहे हैं। मान के चलो तुम्हारे पास 200 टी शर्ट है, वो तुम्हारा ओन टी शर्ट है। 200 टी शर्ट्स है। किधर रखते हो तुम लोग? कबर्ड में। कबर्ड में नहीं, 200 टी शर्ट मैंने पहले दिन बोला था। सब सर घर में रखते हो, सारा घर में रखते हो, कुछ कुछ लेकर आते हो। तो जो लेकर आते हो वो क्या दूसरे से लेकर आया? नो सर। तुम्हारा सामान तुम ही लेकर आया, दैट इज अ रीड ऑपरेशंस। ठीक है। अभी मान के चलो समीर कुमार का बहुत सारा टी शर्ट है, हम 10 ठो ले लिया, अभी हमारा कबर्ड में रखना शुरू किया। सो दिस इज नथिंग बट राइट। हम दूसरे से लिया, हमारा मेमोरी लोकेशंस में रखा, तब जाकर राइट होगा। कोई मेमोरी लोकेशन से डेटा ले लो रजिस्टर्स में किसी में, तो सब ऑल आर नथिंग बट ए रीड ऑपरेशंस। और बहुत इजी चीज बता रहा हूं, इतना कुछ भूल जाओ। तुम्हारे पास ये है ना, तुम्हारे पास तो मोबाइल है। यस सर। मोबाइल है, वेरी गुड। तुम्हारे पास मोबाइल में कुछ डेटा है, डेटा है कि नहीं? यस सर। फाइल्स वगैरह है कि नहीं? मूवीज है कि नहीं? हैं? यस सर है। तो ये जो मूवीज तुम जब देख रहे हो, जब मान के चलो एक मूवीज देख रहे हो जो तुम्हारा मोबाइल में है पहले से ही, इसको हम लोग बोलेंगे रीड ऑपरेशंस। मान के चलो कोई फाइल बाहर से लाकर तुम तुम्हारा मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, दैट इज अ राइट। जैसे सीडी राइट हो गया, सीडी में कुछ चीज बार्न करना, राइट करना। जैसे मान के चलो हार्ड डिस्क में कुछ राइट करना, ये सारा राइट हो गया। रीड मतलब जो है वो उसको तुम सिर्फ देख रहे हो, इसको बोलता है रीड।
मतलब सर से जो मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है सब रीड में आएगा, सब रीड में आएगा। और जो पेन ड्राइव से बाहर से देखे वो सब राइट में। ना बाहर से देखो, वो देख रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर मान के चलो पेन ड्राइव में है, तुम मोबाइल में कॉपी कर रहे हो, दिस इज राइट। दिस इज राइट ना सर राइट मतलब क्या होता है? राइट मतलब तुम लोग सीडी देखे हो? सीडी, यस सर। सीडी के अंदर कुछ बाउंड करते हैं, मतलब राइट करता है। वही सीडी को कोई दूसरा जगह में मूवीज देखो, कुछ भी देखो, दिस इज नथिंग बट ए रीड। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। रीड एंड राइट इज नथिंग बट ए, तुम्हारा मोबाइल में एक कॉन्सेप्ट सुन लो एकदम, तुम्हारा मोबाइल में जो डाउनलोड किया हुआ है, बाद दूसरे किसी से कॉपी किए हो, ये सारा जब तुम देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट ए, जब देख रहे हो दिस इज नथिंग बट ए रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो उसको, और कुछ नहीं कर रहे हो। जब किसी दूसरे से लेकर आकर तुम्हारा मेमोरी डिवाइस में स्टोर कर रहे हो, तुम्हारा कोई मेमोरी डिवाइस में स्टोर कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट ए। सर हेलो। हाँ सर हम जहाँ पे हैं वहाँ पे बहुत जोर से बारिश हो रहा है सर, अब बादल भी गरज रहा है। अच्छा अच्छा, तो सर इसलिए आज हम अटेंड नहीं कर पाएंगे पूरा क्लास। ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान के चलो तुम्हारा मोबाइल में एक फोल्डर था, जो मूवीज बोल के एक फोल्डर था, जिसके अंदर तुम सारा कुछ कॉपी करके रखे थे। अभी देख रहे हो इस मूवीज के अंदर एक बुक भी है, एक नोवेल भी है, जिसको तुम चाह रहे हो दूसरा कोई फोल्डर में स्टोर करने के लिए। तो उस फोल्डर से लेकर तुम दूसरा फोल्डर में कॉपी कर रहे हो और काट पेस्ट कर रहे हो। ऑल आर नथिंग बट ए रीड ऑपरेशंस। जब मोबाइल में कोई डेटा बाहर से तुम कॉपी करना चाह रहे हो, बाहर से कोई डाउनलोड करना चाहते हो, दैट इज नथिंग बट ए राइट ऑपरेशंस। मोबाइल के अंदर है, कुछ भी करो तो रीड ऑपरेशंस। मोबाइल से बाहर से आ रहा है, डाउनलोड करो चाहे कॉपी करो, तो इज ए राइट ऑपरेशंस। राइट ऑपरेशन। इज इट क्लियर और नॉट? यस सो रीड राइट हो गया। अभी RD बार मतलब whenever this signal goes low, microprocessor perform the read operations. Okay? WR बार क्या फंक्शन होगा? राइट। राइट तो राइट फंक्शन बताओ तुम। अभी हम तो सब बता दिया, रीड बोल दिया। रीड फिर से बोले, when this signal goes low, memory microprocessor perform the read operations. अभी तुम बोलो और जब हाई होगा तब सर? तब रीड ऑपरेशंस नहीं होगा, दूसरा कोई ऑपरेशंस होगा। इसका सिर्फ हाई एंड लो होने से दोनों का काम है, क्योंकि ऑब्लिक देकर दो नाम लिखा हुआ था, इसका तो नहीं है। WR बार का क्या काम होगा? जब when it will go low, the microprocessor will, when this signal goes low, microprocessor will be perform the Right operation. either input output write or memory write, whatever it is. Another two signal is there, name is S0 and S1. S0 and S1. These two is used for status signal. These two are used for status signal. These two are used for status signal for various operation of microprocessor. Status signal means, मैंने अंकिता को बोला, अंकिता कोड में बात करो, ऐसे बात मत करो। तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो तो बोलना 00। तुम अभी ये करना, तुम अभी खाना खा रहे हो तो बोलना 01। तुम अभी सो रहे हो तो बोलना 02। तुम अभी किसी सर के क्लास करना तो बोलना 04। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, देखो हम वो स्टेटस देख के पता चल जाएगा जो वो क्या कर रहा है। सेम विद द हेल्प ऑफ S0 एंड S1 वी कैन नो द स्टेटस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। कब मेमोरी राइट कर रहे हैं, कब मेमोरी रीड कर रहे हैं, कब आईओ रीड कर रहे हैं, कब आईओ राइट कर रहे हैं, हर एक स्टेट के लिए ये इसका कॉम्बिनेशन होगा।
IO ऑब्लिक M बार एंड S0 S1, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से माइक्रो प्रोसेसर का बहुत सारा स्टेटस पता चलेगा। मेमोरी रीड, IO रीड, सारा का सारा स्टेटस पता चलेगा। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? सर एक बार रिपीट कीजिएगा। एक बार कर रहे हैं। S0 एंड S1 दोनों is nothing but a status signal. This is nothing but a status signal. Status means माइक्रोप्रोसेसर अभी कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, आईओ फेच, बहुत सारा ऑपरेशन है। सारा का सारा ये तीनों 1, 2 एंड 3 आईओ ऑब्लिक एम बार S0 S1 इन तीनों का एक टेबल होगा। कैसा टेबल होगा? टेबल होगा ऐसा, आईओ ऑब्लिक एम बार। हम अभी लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसका नोट्स देना चाहता है। S0 S1 0 0 0 एक ऑपरेशन होगा, 0 0 1 दूसरा ऑपरेशन होगा, 0 1 0 तीसरा ऑपरेशन होगा, सब दिख नहीं रहा सर। 1 सर ऊपर कर दीजिए। 0 1 1 चौथा ऑपरेशन होगा। ऐसे करके हर एक के लिए अलग अलग ऑपरेशन होगा। आईओ ऑब्लिक एम बार S0 S1। देखो ये जो है पहले का जो है, ये जो पहला 4 है, ये आईओ ऑब्लिक एम बार क्या है? इनपुट आउटपुट मेमोरी। ना क्या है? 0 है ना सब? 0 होने से क्या ऑपरेशन होगा? 0 होने से क्या ऑपरेशन होगा? मेमोरी ऑपरेशन। तो ये सारा मेमोरी ऑपरेशंस होगा। सारा मेमोरी का रीड होगा, क्या मेमोरी का राइट होगा, कुछ होगा, ये सारा मेमोरी ऑपरेशंस होगा। इसके बाद आएगा 1 0 0 1 0 1 ऐसे करके 8 कॉम्बिनेशंस होगा। तो 8 डिफरेंट ऑपरेशंस ये S0 S1 से पता चलेगा, राइट? आईओ रीड, आईओ राइट, आईओ फेच। क्लियर? माइक्रोप्रोसेसर अभी क्या काम कर रहा है, इसके लिए ये स्टेटस सिग्नल से हम लोग को देख के पता चलेगा। With the help of the status signal, we can understood whether the microprocessor doing which kind of operations. Clear? Clear? Deepak Kumar, is clear to you? Deepak Kumar, roll number 7. Deepak Kumar, roll number 7. Are you hear me? दीपक कुमार शायद मोबाइल ऑन करके दूसरा काम में गया होगा। यही बोल रहा था। देखा, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। दीपक कुमार, कैन यू हियर मी? अच्छा बोलो तो, ये जो मतलब फाकी दे रहे हैं, मतलब हमको तो फाकी दे रहे हैं ना, एक क्लास ऑन करके चला जाना। किसको फाकी दे रहे हैं? हमको सब फाकी मतलब अटेंडेंस बट है नहीं सर। धोखा देना, धोखा देना, धोखा दे रहा है। तो किसको दे रहा है धोखा? हमको, अपने आप को, आपको। अपने आप। लॉस उसका होगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा। हम तुम लोगों को सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। सीखोगे नहीं सीखोगे तो बाद में समझ में आएगा। हमारा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग चाहो तभी होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। हम हमारा तरफ से 100 नहीं 200% देंगे, मगर तुम्हारा तरफ से 20% भी नहीं दोगे तो इट्स इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलो, ऐसा क्लास करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
बहुत सारा एक्सक्यूज आएगा, सर अभी बारिश हो रहा है, अभी बादल हो रहा है, अभी नेट नहीं है, अभी ये नहीं है। ये सब तुमको इंतजाम करना पड़ेगा, सीखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लग रहा है हमारे पास बहुत सारा स्टोरीज है, बोलेंगे एक एक करके, ठीक है ना। हमारा एक फ्रेंड था, नाम नहीं बताऊंगा, हमारा फेसबुक प्रोफाइल में अभी भी है। तो वो अभी एक कोई कॉलेज का टीचर भी है। तो होता है ना क्लास में, हम फर्स्ट बेंचर था, हम टॉपर था, पीछे में वाला भी बहुत कोई रहता था ना, तो ऐसा कोई था। तो जब हम गेट स्कोर करके जब हम एमटेक कर रहा था, तो उस दिन हमारा एक फ्रेंड आया, बोला तुम इतना एक छोटा मोटा कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम जितना पढ़ाई में था तुमको तो फॉरेन में जाना चाहिए था। हम तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तुम क्या कर रहे हो? हम तो फॉरेन जा रहा है नेक्स्ट वीक, जर्मन जा रहा है, जर्मनी सीख रहे हैं। तब ना ये फेसबुक नहीं था, तब ऑर्कुट बोल के एक था, ऑर्कुट। ऑर्कुट नाम सुने हो कभी? सुने। तो ऑर्कुट था, वो हर एक दिन ना फॉरेन में सच में गया था, हर एक दिन हमको पिक्चर भेजता था। हम उसके एक बार पूछे भी थे, तुम कैसे गया, मतलब तुम्हारा तो इतना मार्क्स नहीं है, ना 10 का है, ना 12 का है, ना बीटेक का है, तुम्हारा बहुत सारा सब्जेक्ट में सप्ली भी था, तुम कैसे गया? ऐसा लाइन अप भाई, लाइन अप, हमारा दीदी है, जीजू है, मिल गया। वाह, तो तुम टेंशन मत करो, मैं हूं ना, तुमको ले लेंगे। हमारा उस दिन बहुत खराब लगा था, क्या बोले, मतलब मिट्टी फाक हो जाओ तुम्हारा अंदर घुस जाता है, जो वो हमको लेकर जाएगा, इसके बाद हम हो पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं बन सकते। क्या करे, अभी टाइम ऐसा था। 6 महीना तक ना बहुत कुछ पिक्चर भेजा, 6 महीने के बाद ना पिक्चर भेजना बंद हो गया। तो मैंने सोचा चलो कम से कम हमारा तरफ से टेंशन मुक्त। हम वो हर एक दिन देखता था, हमको और खराब लगता था। तो लगभग 8-9 महीना हुआ, तो हमारा एक दूसरा फ्रेंड हमको कॉल किया, ये तुम्हारा नंबर मिस्टर एक्स ने मांग रहा है। तो मैंने, मिस्टर एक्स तो अभी जर्मनी में है ना, छोड़ के आ गया, वो तुम्हारे साथ बात करना चाहता है। तो हम बोल रहा हूँ हाँ बात करेगा, क्या प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे साथ मिलना चाहता है, ठीक है आ जाने बोल। तो हमारा हॉस्टल में आया, तो हम गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते थे, और सिंगल रूम, हाँ एक दिन रहा भी। तो मैंने, वो हमको बोला जो तुम्हारा कॉलेज में हमारा एडमिशन करवा दो। मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज है यार, ये प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये हम बोलेंगे तो एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो तुम तो जीएस हो, हाँ तो जीएस है तो क्या हुआ, जीएस हो के एडमिशन हो करा सकता है, ऐसा नहीं, हम सर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मगर इससे बात कुछ नहीं हो सकता। तो हम बोला तुम जर्मनी में था, तो हम तो तुम्हारे भरोसा में हैं कि तुम हमको हम लेके जाओगे। नहीं रे भाई, एक चीज समझ गया, जो कुछ नहीं जानने से वो जाकर भी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक कोई मौका मिलता है, उसके बाद खुद का चलाना पड़ता है। और उस टाइम में दीदी भी नहीं रहता है, जीजू भी नहीं रहता है, तो वो हम नहीं कर पाया, तो इसलिए हमको निकाल दिया गया है। 5-6 महीने में बहुत सारा रुपया फॉरेन में जाकर खर्चा भी हो गया, फिर हम आ गया। तो पढ़ाई करो, कब किस चीज में काम में आएगा तुम सोच नहीं सकते हो। मैं जब पढ़ाई किया था, कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक सब्जेक्ट जो हमको कभी जरूरत पड़ सकता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो एक सब्जेक्ट कभी भी हमको जरूरत पड़ सकता है। यू नो, इफ आई डोंट नो वेदर यू नो माय बैकग्राउंड और नॉट। मैं 2013 से 2015 तक हम चाईबासा का प्रिंसिपल था। तो 13 से 15 तक मैं उधर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ाया और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी करवाया। जो 13-17 बैच का कोई भी चाईबासा का स्टूडेंट तुम्हारे साथ जान पहचान में है, तुम एक बार पूछ लेना। तो कब क्या चीज जरूरत आएगा कोई नहीं बोल सकता, जो मौका मिल रहा है उसको पूरा यूटिलाइजेशन करो, अदरवाइज इज वेरी डिफिकल्ट। अभी तुम लोग का टाइम भी नहीं है, 1-1.5 साल के अंदर जो करना है करना है। चलो, बहुत भाषण समझ के भूल जाना, है कि नहीं? अच्छा लगा सर। अरे अच्छा लगा। चलो देखते हैं, मन लगा के क्लास करो, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हमें अभी बोला आई ऑब्लिक एम बार एस जीरो एस वन रीड बार राइट बार,
कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल हमारा खत्म हो गया, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल हमारा खत्म हो गया। अभी इसके बाद क्या है? पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, है ना। देखो इधर VCC है, VCC है जिसमें हम लोग 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई देते हैं, जिसमें हम लोग 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई देते हैं। VCC में हम लोग क्या देते हैं? 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई, राइट। ग्राउंड इसमें हम लोग देते हैं वर्चुअल ग्राउंड, दैट इज द ग्राउंड, ग्राउंड आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड। दिस इज अनदर 2 पिन। सर कितना पिन बोला अभी तक? 20 बोला हो गया उधर। देन ALE 17, IO oblique pin bar 18, read bar 19, write bar 20, S0 S1 21 22 VCC 22 and VCC 23, now is 24. Okay, all are pin, nothing else, all are pins. VCC में +5 वोल्ट सर ये S0 और S1 हैं? S0 और S1 एक साथ होता है या अलग अलग? अलग एक ही काम है, इसीलिए S0, S1 लिखे थे। S0, S1 अलग अलग। ओके, इन दोनों पिन समझा दिया। VCC +5 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 18 एंड 19, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलता है Extel 1 एंड Extel 2। connected with a crystal, microprocessor connected with a crystal, Extel 1 and Extel 2 connected with a crystal. crystal मतलब Extel 1 and Extel 2 crystal मतलब crystal मतलब is nothing but a connected with घंटा. quartz. It's nothing but a generate the clock. It's generate nothing but a clock. Crystal कैसा दिखना मतलब दिखता है? Just like a coin. Color is just a silver color. There is a 2 pin connected with that. Remember one thing: if a microprocessor that is a 8085 connected with a 6 megahertz crystal, then 8085 working in means clock is 3 megahertz. Working clock is 3 megahertz. I'm repeat once again. 8085 working in a 6 megahertz. So 8085 is nothing but a working in 3 megahertz. जितना फ्रीक्वेंसी तुम दोगे उससे हाफ में काम करेगा. Clear? It's clear? Yes sir. Yes sir. हाफ में क्यों करेगा सर? हाँ? हाफ में क्यों काम करेगा? ये उसका सर्किट है, इंटरनल सर्किट ऐसे बनाया है, जितना तुम क्रिस्टल लगाओगे उससे हाफ में काम करेगा. If you are connected with X megahertz crystal, so microprocessor clock frequency will be X by 2. उसके इंटरनल 7 रहा तो सर? हाँ? 7 रहा तो 3.5. ओके सर. जैसे तुम्हारा जब कॉलेज में जब किट में काम करोगे उसमें हम दिखाएंगे 6.144. हमको पता नहीं इस साल होगा कि नहीं होगा, कोशिश तो करेंगे. अगर हम लैब कराएंगे तुम लोगों को, टेंशन मत करो, ये घर में बैठ के भी लैब कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो. प्रोग्रामिंग तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके लिए सिमुलेटर है, हम दे देंगे. जो तुम्हारे कॉलेज में जो किट है उसमें है 6.144 मेगाहर्ट्ज, तो वो काम करेगा उससे डिवाइडेड बाय 2. बोलो सर. 8085 का क्लॉक फ्रीक्वेंसी रेंज 3 to 5 मेगाहर्ट्ज था. तो आप यहाँ पे 6 मेगाहर्ट्ज ले. 6 मेगाहर्ट्ज तो दिया है, काम कर रहे हैं कितना में? 3 मेगाहर्ट्ज.
मतलब हम दे सकते हैं 6 to 10 मेगाहर्ट्ज दे सकते हैं। ओके आप जगह वो 3 to 5 मेगाहर्ट्ज में काम करेगा। ओके सर। राइट? यस सर। सर 3 मेगाहर्ट्ज से कम पावर रहा तो? 3 मेगाहर्ट्ज से कम पावर रहा तो काम करेगा? तो भी काम नहीं काम करेगा। वो 3 से 5 ही देना पड़ेगा उसके बीच में, उससे कम देने से काम नहीं करेगा। मिनिमम वो क्लॉक देना ही पड़ेगा। जैसे अंकिता कितना बोला था, 500 ग्राम्स का चावल खाता है, उसको 400 डेली दोगे तो थोड़ी ना जिंदा रहेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्लियर? कैन आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? यस सर। तुम लोग अभी बहुत स्लो पढ़ रहे हो, है कि नहीं? मगर जब सर पढ़ाया था तो बहुत तेज पढ़े थे। 6 क्लास में 8085 खत्म भी हो गया था। अभी देखो हम कितना स्लो आदमी है कि नहीं? सर वो पढ़ाए थे तो याद भी तो उतना ही है सर, फास्टली भूल भी गए। भूल भी गया वो भी है, पढ़ाया तो था, तेज था पढ़ाने में, हम उतना तेज नहीं है। तो ये जो तुम्हारा जो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारे ऊपर ना? हमारे ऊपर। I am giving the clock to everyone. I am given the clock to everyone. माइक्रोप्रोसेसर का क्लॉक दे रहा है क्रिस्टल, मगर I will be provide to clock to you only. तुम्हारा स्पीड कितना होगा that will be decided by me. So हम तुमको क्लॉक दे रहे हैं। So you are all the peripheral, I am the microprocessor. You all are the peripheral, I am the microprocessor. Peripheral means helping hand. Peripheral means helping hand. You know, there is another signal is called clock out. This is clock in. Whatever I am discuss, XTEL1, XTEL2, this is nothing but a clock in. And this is nothing but a clock out. Clock out signal is a signal which is given as a system clock to the other devices. As a system clock of other devices. तुम लोगों को clock हम दे रहे हैं. I will be provide the clock to you only. Whatever the clock I will be provide, it will be given, you know, as a system clock. हम जितना clock देंगे, जितना ज्यादा clock देंगे, clock मतलब just like a clock. अभी A भी एक clock हो गया, ऐसा भी एक clock हो गया। देखो इसका T, इसका जो T है और इसका जो T है एक ही है। इसका थोड़ा बड़ा नहीं है, इसका टाइम बड़ा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। तो जितना क्लॉक दोगे उतना ज्यादा क्लॉक दोगे उतना फास्ट होगा। So your speed will be depend upon me, not depend upon you. So as I am the microprocessor, you are all at the peripheral, so your speed will be depend upon me. अभी हमारा स्पीड कम है, इसलिए तुम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। सर का स्पीड ज्यादा था, बहुत जल्दी पहुंच गया था। क्लियर? Yes sir. It's clear to all? सर नहीं समझ आया तो अंकिता, तुम लोग ना सब हमको हेल्प करने के लिए बैठे हो, सब हेल्प करते हो हमको। हम जो क्लास ले रहे हैं उसमें तुम लोग सिर्फ हेल्प करते हो और कुछ नहीं। तुम्हारा हेल्प के बिना होगा भी नहीं। सो यू ऑल आर नथिंग बट ए पेरिफेरल विथ रेस्पेक्ट टू मी। तुम लोग हमारे पास सिर्फ पेरिफेरल हो। एंड आई एम द बॉस, आई एम द प्रोसेसर, आई एम द बॉस, आई एम द प्रोसेसर। हम जो सोचेंगे वही तुम लोग करोगे। अभी बोलेंगे क्लास खत्म तो क्लास खत्म, अभी बोलेंगे क्लास शुरू तो क्लास शुरू। तो ये दैट विल बी डिपेंड अपॉन मी, नॉट डिपेंड अपॉन यू। सो जो क्लास जो अभी चलेगा, इट विल बी डिपेंड अपॉन यू, not it will not be depend upon you, it will be depend upon me. So I am the master, I am the boss, so I am the processor and you all are the peripheral. तुम लोग कितना फास्ट करोगे, कितना स्लो करोगे, that will be decided by me. So हम जो क्लॉक देंगे, क्लॉक मतलब ऐसा क्लॉक देंगे हर एक डिवाइस को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जो हमारे साथ पेरिफेरल्स है, जो हेल्पिंग हैंड है। सो ये सब सारा को हम लोग बोलता है क्लॉक। ये जो क्लॉक तुम लोगों को चाहिए, इट विल बी डिवाइडेड बाय माइक्रोप्रोसेसर इटसेल्फ। हम देंगे तुम लोगों के लिए, तुम्हारा क्लॉक के लिए, तुम्हारा स्पीड डिपेंड करने के लिए टू द अदर डिवाइसेस। और एक चीज बोलते हैं, तुम लोग माइक्रोप्रोसेसर का किट कभी देखे हो? ना देखे, नहीं देखे हो ना?
हाँ या ना? देखे सर। देखे हो? उसमें देखना सिर्फ एक ही माइक्रो प्रोसेसर आईसी है, बाकी सारा जो आईसीज है उसको पेरिफेरल आईसीज बोलते हैं। तो जो लोग नहीं देखे हो उसको हम बोलेंगे मदरबोर्ड। देख लेना मदरबोर्ड। मदरबोर्ड देखे हो? यस सर। मदरबोर्ड किधर रहता है? यस सर। सर सीपीयू में कंप्यूटर का। तो जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में तुम याद रखना एक ही प्रोसेसर है, बाकी जो सारा आईसीज है ऑल आर नथिंग बट ए पेरिफेरल हेल्पिंग हैंड ऑफ प्रोसेसर। हेल्पिंग हैंड ऑफ प्रोसेसर। एक्चुअली प्रोसेसर को हम लोग बोलते हैं जगन्नाथ। प्रोसेसर को हम लोग बोलते हैं जगन्नाथ। नाम कभी सुने हो जगन्नाथ? हाँ सर। क्या डिफरेंस है बाकी दूसरा भगवान से? जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ वही ना सर जो उड़ीसा में हाँ, मंदिर है। पुरी में है, पुरी में है। क्या डिफरेंस है बाकी सारा भगवान से? उनकी तो बोलो। बहुत जागृत है सर, उसको बोलने से ही सब काम कर देता है सर। शिव जी है। हैं? भगवान एक ही है सर, इसके अवतार बहुत सारे ना। उसका कुछ डिफरेंस है that with respect to the others. With respect to others, it is a difference from the from the other gods. What are the difference? सिबलिंग डिजाइन डिफरेंस होगा। सिबलिंग। अंकिता तुम क्या बोल रहे थे? बोलो। सर हम बोल रहे थे ना कि शिव जी मतलब शिव जी मेन है, मतलब शिव जी ही जगत हरता है, मतलब उन्हीं मतलब कैसे सबसे मेन वही है। अरे मेन फेन हम धार्मिक हर जगह पहाड़ पे है, वहाँ पहाड़ पे नहीं है ना सर। हम धार्मिक क्लास नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कुछ डिफरेंस है, मतलब कुछ डिफरेंस है। ये भगवान बहुत अच्छा है सर, बोलने से काम तुरंत तुरंत कर देता है, कभी बोल सकते हो। ऐसा कुछ होता नहीं है। के मूवी से हैं? के मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है सर। सर रथ में ले जाया जाता है। ये भगवान को कभी कोई देखे हो? कोई देखे हो इधर में? नहीं सर। एक बार भी पूरी भी नहीं गया? अरे घूमने के लिए जा सकते हैं, समुंदर है। प्लान बनाए थे इस साल सर। अच्छा, यार टूर। लेकिन कोरोना टूर हो गया। हम बोले यस सर। ये भगवान का हाथ पैर नहीं है, सिर्फ बॉडी है, पैर है। यस सर। ये है डिफरेंस बाकी दूसरा सारा भगवान से। सेम एज माइक्रोप्रोसेसर, देयर इज अ नो हैंड नो लेग्स। इसका कुछ नहीं रहता है। अभी जगन्नाथ को हाथ चाहिए तो क्या करेगा? बाहर से हाथ लगाना पड़ेगा, फॉल्स हाथ, जितना चाहे लगा लो, 10 20 50 100 जितना चाहे लगा लो। ऐसा माइक्रोप्रोसेसर के भी वही हालत है, तुमको जितना चाहे हाथ लगा सकते हो, बट देयर इज अ नो हैंड इंटरनली। देयर इज अ नो हैंड, इट्स अ जगन्नाथ। याद रखना। इट्स क्लियर? Yes, तो जो हाथ लगा रहे हो ऑल आर नथिंग बट ए पेरिफेरल्स। जो हाथ लगा रहे हो, जो फॉल्स हाथ लगा रहे हो, जो जगन्नाथ को हेल्प कर रहा है, जो माइक्रोप्रोसेसर को हेल्प कर रहा है, दैट इज नथिंग बट ए इज अ पेरिफेरल आईसी, हेल्पिंग हैंड। इट्स क्लियर? yes sir. तो ये है हेल्पिंग हैंड। ए हेल्पिंग हैंड के लिए जो क्लॉक चाहिए दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय माइक्रोप्रोसेसर यूजिंग द क्लॉक आउट सिग्नल। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। सो क्लॉक इन क्लॉक आउट हो गया, मतलब पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कंप्लीटेड। ओके, यस सर। नेक्स्ट एक्सटर्नली Initializing signal and interrupt. इंटरप्ट क्या है? पहले इंटरप्ट से शुरू करते हैं। बाधा डालना सर। हैं?
रुकावट और रुकावट रुकावट रुकावट। ठीक, और कुछ? हम लोग अभी क्लास में क्लास कर रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम में क्लास कर रहे हैं। अभी मान के चलो बाहर में कोई आवाज करेगा, हैं? ये जो अच्छा बाहर में आवाज ही बोलते हैं, पहले बाद में बोलते हैं वो सब। तो बाहर में बहुत आवाज हो रहा है तो हमारा क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब होगा, राइट? सो दिस इज नथिंग बट इंटरप्ट। हम लोग जिस क्लासरूम में क्लास कर रहे हैं उसके साइड से मान के चलो इसी थर्ड ईयर जा रहा है और मैकेनिकल थर्ड ईयर जा रहे हैं, झमेला कर रहे हैं, हाँ ये चाहिए, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, ना नहीं करना पड़ेगा, क्लास एकदम नहीं, बाकी सब दूसरा करना पड़ेगा, खेल कूद करना पड़ेगा। तो ये सब जो चल रहा है इसमें हमारा क्लास का प्रॉब्लम हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट इंटरप्ट। तो हम क्या कर सकते हैं? बोलो। तो हम आगे चले जाएंगे। हम ऐसे रूम बनाएंगे जिसमें बाहर का कोई साउंड ना आए, हम दरवाजा बंद करके पूरा क्लास कराएंगे, राइट? क्लास ही बंद करवा दीजिए। हैं? क्या बोल रहे हो? अरे बोलो ना, अभी हम कुछ करेंगे नहीं तुम्हारा। सर क्लास डिसमिस कर लीजिए सर। क्लास डिसमिस करने से तो कुछ होगा नहीं, हमको इंटरप्ट बंद करना है। तो इंटरप्ट हम बंद कर सकते हैं, जो बाहर से कोई साउंड ना आए, ऐसे हम रूम बना सकते हैं। मगर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्या बोलो तो? मान के चलो बाहर में आग लग गया, हाँ बाहर में कोई प्रॉब्लम हो गया, हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, हम लोग रूम में ही रह जाएंगे, मगर हम लोग जब निकलने जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे। So that is nothing but a one kind of difference. Is it clear to you? Yes sir. तो इंटरप्ट sometime is required, sometime is not required. अभी मान के चलो जो क्वेश्चंस कर रहे हो, हम चाहे तो एक बात में तुम्हारा क्वेश्चंस करना बंद कर दे सकते हैं। नंबर हमारा हाथ में है, ज्यादा क्वेश्चंस मत करो, धमकी, वो नंबर हम नहीं देंगे। तो इंटरप्ट, मगर इधर इंटरप्ट चालू रखना चाहिए था, है कि नहीं? ये जो तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, दिस इज नथिंग बट इंटरप्ट इन अ क्लास। मगर ये इंटरप्ट से फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है, दूसरा फ्रेंड को भी फायदा है, बहुत सारा का क्वेश्चंस है मन में मगर बोल नहीं पा रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। तो इंटरप्ट समटाइम इज रिक्वायर्ड, समटाइम मे नॉट बी रिक्वायर्ड, डिपेंड अपन कैसे इंटरप्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। मान के चलो अंकिता जो क्वेश्चंस करता है एकदम बेकार करता है, तो मैंने क्या करेंगे, अंकिता का क्वेश्चंस अभी से बंद कर देंगे। बताओ, तुम्हारा हर एक टाइम बुलबुल क्वेश्चंस, बताओ, कोई जरूरत नहीं, दूसरा किसी का क्वेश्चन है तो बताओ। सो आई कैन इग्नोर हर, नो इश्यूज फॉर दैट, बट अंकिता इज कमिंग फ्रॉम जमशेदपुर, मींस XCM, आई कैनॉट इग्नोर। सो कोई इंटरप्ट को तुम डिसेबल करके रख सकते हो, जो इंटरप्ट को डिसेबल एंड इनेबल कर सकते हो, जिसको बोलता है मास्केबल इंटरप्ट। क्या बोलता है? मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट, मास्क मतलब मुखोश, हम लोग बोलते हैं बंगाली में, तुम लोग क्या बोलते हो पता नहीं है। यस सर, मुखोश पड़ता है, बोले थे मुखौटा सर। मुखौटा। तो एक्चुअली ये मास्क जो है, यू नो, सम इंटरप्ट इज मास्केबल, सम इंटरप्ट नॉन मास्केबल। नॉन मास्केबल मतलब मान के चलो अंकिता किसका आदमी है? सीएम क्या ऐसे बनता है, नेता की ऐसा बनता है विदाउट यू नो एनी पावर, रिस्क का जोर रहता है तब जाकर सीएम बनता है, am I right? सीएम क्या कोई भी नेता। तो अंकिता के साथ लगना मत, तो क्या करेंगे, अंकिता को हम नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोल देंगे, जे कभी मास्केबल इंटरप्ट नहीं होगा। व्हाट आर द यूज ऑफ अंकिता मींस एज ए रियल लाइफ? मान के चलो स्मोक डिटेक्टर, इफ यू वांट टू एनेबल और डिसेबल, तो क्या करेगा, जब आग लगेगा उस टाइम मान के चलो देखा जाएगा वो डिसेबल था, तो हो गया, आग लग गया। तो स्मोक डिटेक्टर लगा के फायदा क्या है?
स्मोक डिटेक्टर ऑलवेज ऑन रहना चाहिए, कोई भी टाइम में ऑफ नहीं होना चाहिए. सो स्मोक डिटेक्टर इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट. Some interrupt is always non-maskable. Some interrupt may be maskable, non-maskable, depend upon us. हम लोग कर सकते हैं मास्क कर सकते हैं, नहीं मास्क कर सकते. जिसको हम लोग मास्क कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे मास्केबल इंटरप्ट. जिसको हम लोग मास्क नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मास्केबल इंटरप्ट. ओके, इज इट क्लियर? यस सर. किसी का कोई डाउट्स है तो बोल सकते हो. मास्केबल इंटरप्ट एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट. जिसको हम लोग डिसेबल कर सकते हैं उसको नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोलेंगे. जिसको हम लोग इनेबल डिसेबल कुछ नहीं कर सकते, ऑलवेज इनेबल रहता है, इसको हम लोग मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं. ऑलवेज इनेबल रहेगा, इसको हम लोग नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोलेंगे. इंटरप्ट का जरूरत कैसे पड़ता है बोलो तो, एज ए रियल लाइफ. कोई पावर प्लांट देखे हो तुम लोग? यस सर. यस सर. पावर प्लांट में ना ऑटोमेटिक रहता है. हमारा एक फ्रेंड गुजर गया है पावर प्लांट में, उन लोगों का गलती की वजह से. हमारे साथ बीटेक किया था, कुंतल नायक नाम है, हमारा फेसबुक प्रोफाइल में मिल जाएगा. वो वाइजैक में एक उसका ये देखना, वो भी मिल जाएगा. वाइजैक में ना एक प्लांट ब्लास्ट हुआ था, उसमें उसका डेथ हो गया. कैसे हुआ था डेथ? प्लांट में ना बहुत सारा इंडिकेटर रहता है, जैसे हुटर बजता है, लाइट जलता है. मान के चलो एक वाटर लेवल है, वो उससे ज्यादा कम हो जाएगा तो एक्सप्लोसिव हो सकता है, तो इसके लिए हुटर बजेगा. उसका पहले रेड लाइट जलेगा. और मान के चलो बहुत सारा का इंडिकेटर है, तो लेवल कम बढ़ेगा. हर एक टाइम में तुम मान के चलो ह्यूमन बीइंग ना सो गया है, तो हुटर चलेगा तो तुम्हारा नींद खुल जाएगा, तुम जाकर कुछ कर सकते हो. तो प्लांट में सब बच सकता है एवं अभी प्लांट अच्छी तरह चल भी सकता है. तो ये करने के लिए ये बहुत सारा साउंड सिस्टम है, लाइट है, रेड लाइट है, बहुत सारा कुछ चलता है. ये जो इंडिकेटर्स वगैरह है वो हर एक दिन देखता था, उसका प्लांट में जो चलता था सब सही चलता था, तो प्रॉब्लम नहीं है. रात में कभी कभी वो बजना शुरू कर देता है, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, छोटा मोटा ये नींद का प्रॉब्लम हो जाता है. वो लोग सारा कुछ बंद कर दिया, अभी प्लांट चला के सो गया. वो पानी का लेवल जो धीरे धीरे घटता गया, कोई हुटर नहीं बजा, कोई लाइट नहीं बजा, पूरा प्लांट एक साथ ब्लास्ट करके जितना सारा आदमी था सब मर गया. तो ये जो है, दिस इज नथिंग बट जस्ट लाइक ए वन काइंड ऑफ इंटरप्ट. एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर कोई भी टाइम में एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आएगा तो बोलेगा. जैसे कुछ देर पहले मान के चलो घर का उधर बाज पड़ रहा है, कोई बिजली गिर रहा है, कोई कुछ गिर रहा है, तो दिस इज नथिंग बट इंटरप्ट. आया और निकल गया. इज इट क्लियर? यस. So interrupt is required, interrupt is not required, ऐसा बात नहीं है. क्या क्या इंटरप्ट है? नंबर 1 ट्रैप. नंबर 1 ट्रैप. नंबर 2 RST 7.5. नंबर 3 RST 6.5. नंबर 4 RST 5.5. ऊपर की कॉपी सर, और ऊपर करें. नंबर 5 INTR. ये है 5 इंटरप्ट. दिस इज आवर 5 मेन इंटरप्ट. अच्छा बोलो तो ये जो तुम लोग मान के चलो अमित कुमार एंड अमित मेहता, अमित कुमार रजक एंड अमित मेहता, दोनों एक साथ क्वेश्चंस किया. मैंने दोनों का आंसर दे पाऊंगा एक साथ? एक ही तो मुंह है. 1 by 1 होगा. 1 by 1 होगा. तो 1 by 1 किसके बेसिस में होगा? दोनों एक ही साथ क्वेश्चंस किया. डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटी. हम किसको ज्यादा चाहते हैं, किसको ज्यादा प्यार करता हूं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. राइट? तो हर एक का इधर प्रायोरिटी है. राइट? मान के चलो हमारे पास जॉय कुमार का पहला प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नंबर 1. हमारा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है मान के चलो दीपक कुमार. को चला गया दीपक, निकल भी गया क्या? रोल नंबर 7 चला गया. अच्छा
चलो अंकिता का सबसे लास्ट प्रायोरिटी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जय कुमार का है, लास्ट प्रायोरिटी है अंकिता को। ऐसे करके हर एक का अलग अलग प्रायोरिटी लेवल है। मैंने किसको मैं सबसे ज्यादा पहले प्रेफरेंस दूंगा, जो एक साथ आएगा क्वेश्चन तो किसको पहले प्रेफरेंस दूंगा। इसमें ट्रैप है हाईएस्ट प्रायोरिटी, ट्रैप इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ट्रैप इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड INTR इज द लोएस्ट प्रायोरिटी, ट्रैप इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड INTR इज द लोएस्ट प्रायोरिटी। जय तो बहुत खुश है, क्या जय खुश नहीं है तुम? यस सर। हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल गया। अंकिता तुम खुश है? नहीं सर। हैं? नहीं सर। नहीं खुश है। अंकिता को खुश करना है, उसको एक चॉकलेट खिला दिया। कैसे? सारा इंटरप्ट का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, सिर्फ INTR का होता है, सिर्फ INTR का होता है एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। अंकिता जब भी क्वेश्चंस पूछेगा हमको, हम अंकिता का क्वेश्चन में बोलेंगे अंकिता तुम्हारा आंसर हम थोड़ा देर बाद दे रहे हैं, मगर बाकी दूसरा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम ऐसे एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे। एक्नॉलेजमेंट मतलब हम बोल रहे हैं अंकिता तुम्हारा आंसर हम बाद में दे रहे हैं, मींस आई रिसीव्ड योर क्वेश्चंस, आई विल बी गिवन द आंसर शॉर्टली। ऐसा बाकी दूसरा इंटरप्ट के लिए नहीं है, ओनली फॉर द अंकिता, ओनली फॉर द INTR। एक्सक्यूज मी सर। यस सर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप को दिया जाता है ना? ट्रैप को दिया जाता है, मतलब जय कुमार है। बोलो। बोलना चाहते हो और कुछ? दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। नहीं सर, हो गया क्लियर सर, वही दिस इज द हायर प्रायोरिटी, दिस इज द लोएस्ट प्रायोरिटी। द लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो बहुत, उसको वही अभी बोला हूं कि तो बोला हमको अच्छा नहीं लगा सर, जॉय को बहुत अच्छा लगा, खुश है। तो किसका कोई मतलब जॉय क्वेश्चंस करेगा तो हम बोलेंगे नहीं ये तुम्हारा आंसर हम दे रहे हैं, कोई भी अजय क्वेश्चंस करेगा उसको भी हम नहीं बोलेंगे जो तुम्हारा क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं, आंसर बोल रहे हैं। मगर अंकिता जब भी क्वेश्चंस करेगा उसके आंसर हम सबसे लास्ट में देंगे, मगर वो क्वेश्चंस करने से हम तुरंत बोल देंगे आई रिसीव योर क्वेश्चंस, आई विल बी गेट यू बैक शॉर्टली, राइट। तो अंकिता के लिए सिर्फ एंड सिर्फ एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है, उसका नाम है INTA बार, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, INTA बार, ओनली फॉर INTR। INTA bar is an acknowledgement signal of INTR. INTA bar is an acknowledgement signal of INTR. Only one acknowledgement signal is available, that is for Ankita, not for everyone. Only for INTR. It's clear to you? सर तो जितना सारे नाम है, इतना ट्रैप, RTS 7.5, ये सब अलग अलग 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये अलग अलग पिन है, अलग अलग पिन है। ये पांचों अलग अलग पिन इंटरप्ट है, जो बाहर से इंटरप्ट आ सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, जो बाहर से इंटरप्ट आ सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर के अंदर। और सर INTA बार का? INTA बार इज अलग पिन है, INTA बार इंटरप्ट नहीं है, ये इंटरप्ट के एक्नॉलेजमेंट है। मतलब माइक्रोप्रोसेसर देता है अंकिता को, माइक्रोप्रोसेसर देता है INTR को। मान के चलो तुम लोग कोई भी क्वेश्चंस करोगे, हम कोई कुछ बोलेंगे नहीं, हम सिर्फ सुनेंगे, हम आंसर देंगे बाद में, वन बाय वन आंसर देंगे। तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा सर हमारा क्वेश्चन सुना है कि नहीं सुना है। मगर अंकिता जब भी क्वेश्चंस करेगा हम उसको बोलेंगे आई विल बी गिवन योर आंसर शॉर्टली, मींस आई रिसीव योर क्वेश्चंस। फुल फॉर्म क्या बोले सर INTA का? INTA इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ INTR, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ INTR। सर ये भी एक अलग पिन है सर? ये भी अलग पिन है, इधर हम 6 ठो पिन बता दिया। ये सारा पिन क्या होगा माइक्रोप्रोसेसर के लिए? इनपुट और आउटपुट। ये 5 पिन, ऊपर वाला 5। अभी बोलो ना क्वेश्चंस कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो क्या हम कर रहे हैं? हम माइक्रोप्रोसेसर, तुम लोग स्टूडेंट। इंटरप्ट कौन कर रहा है, तुम लोग कर रहे हो क्या हम कर रहे हैं? हम लोग सर। तो यू आर गिवन द इंटरप्ट टू मी, तो हमारे लिए क्या होगा? इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा? इनपुट। इनपुट। तो ये सारा पिन जो है इनपुट है,
अंकिता को चॉकलेट दे रहा है, कौन दे रहा है? आप सर। आप कौन सर। दे रहा है? तो इनपुट होगा क्या आउटपुट? आउटपुट सर। आउटपुट ये होगा आउटपुट, INT होगा आउटपुट। सर क्लियर टू यू? यस सर। अभी हम लोग जो बोल रहा था, किसको किसको बंद कर सकते हो, किसको किसको नहीं बंद कर सकते हो। ये जो सारा इंटरप्ट है इसको तुम बंद कर सकते हो, इसको तुम बंद नहीं कर सकते हो। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मास्केबल इंटरप्ट, NMI, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। दिस इज अ मास्केबल इंटरप्ट, MI। These 4, 2, 3, 4, 5 is a maskable interrupt। इसको तुम बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो, मगर ट्रैप को नहीं खोल सकते हो। जय कुमार नाउ अभी दुमका का आदमी है, वो क्या हेमंत सोरेन का आदमी है, बाप रे बाप, उसको तो अभी हाथ मत लगाना। तो वो जो क्वेश्चंस करेगा उसको हम लोग एकदम प्रायोरिटी भी हाई और उसका हर एक टाइम ऑन भी रहेगा। ऐसा उसको बोलना मत जो नंबर नहीं देंगे। इट्स क्लियर? यस यस सर। कोई डाउट्स इंटरप्ट को लेकर? नहीं सर। अच्छा, सर INTA क्या होगा, नॉन मास्केबल या मास्केबल? ये तो इंटरप्ट ही नहीं है, मास्केबल नॉन मास्केबल क्वेश्चन ही नहीं है, तो इंटरप्ट नहीं है, ये तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है, माइक को ऐसा देता है। INTA तो इंटरप्ट नहीं है, INTA है एक्नॉलेजमेंट। उनकी तो को हम चॉकलेट दे रहे हैं और कुछ ओके नहीं। सर। सर 2, 3, 4, 5 मास्केबल इंटरप्ट है ना? मास्केबल इंटरप्ट, इसको तुम बंद भी कर सकते हो। ओके सर। आगे बढ़े? यस सर। और टाइम है ना तुम लोगों के पास? हमारे पास टाइम ही टाइम। हाँ सर टाइम है, लेकिन क्लास सर ज्यादा लंबा हो गया थोड़ा सा। ओ ज्यादा लंबा हो जाता है हमारा ना, ठीक आधा घंटा 40 मिनट का क्लास मन नहीं भरता है। हमारा इंजन थोड़ा बड़ा है ना, बुलेट का इंजन है, जितना चलेगा उतना फास्ट होगा। और आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट का क्लास मन नहीं लगता है। हमारा क्लास 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा 12 घंटा चलेगा तब ना। क्लियर? तो थोड़ा आगे बढ़े। यस सर। आज के लिए रहने दिए ना ओके डाटा एडजस्ट हो जाता है सर पूरा। हाँ सर। डाटा पूरा एडजस्ट हो जाता है सर। अच्छा बाकी ठीक है, कुछ देखने के लिए बचता नहीं है। इस वीक में तो अब तुम्हारा क्लास नहीं है, बाकी सर का क्लास करो। नेक्स्ट वीक में हम बेंगलोर जा रहे हैं, प्रोबेबली मंडे तो तुम्हारा क्लास नहीं है। हम देखेंगे शाम के टाइम में कुछ होटल से कुछ क्लास ले पाएंगे तो हम लेंगे जरूर, मगर कोई कंफर्मेशन नेक्स्ट वीक में नहीं है। जो क्लास होगा मैडम को मैंने लिंक बना के भेज दूंगा, तुम लोग अलर्ट रहना। हम पहले एक दिन पहले बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। नहीं तो नेक्स्ट वीक, अच्छा नेक्स्ट वीक हम सर को बोल देते हैं, थोड़ा 2-4 क्लास ले लेगा। नहीं सर। नहीं नहीं सर सर। आपके हमारा काम लिए पूरा होच खत्म हो जाएगा। सर आप होच पोच हो जाएगा सर, होच पोच हो जाएगा सर बहुत पूरा। कुछ हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। ना ना ना, हम जो पढ़ाया उसके बाद से बोलेंगे इसको थोड़ा इतना देर तक पढ़ा देना। नहीं नहीं सर आप ही नहीं सर, कंटिन्यू नहीं कर सर। दीजिएगा। पढ़ाइए सर। फिर आपको आके फिर से उसको लेना पड़ेगा वो वाला क्लास। क्यों लेना पड़ेगा? हम लोग वेट कर लेंगे सर। अच्छा नेक्स्ट वीक में हम कोशिश तो जरूर करेंगे। हम जा रहे हैं तुम्हारा हुबली कॉलेज में जाएंगे, तो कुछ मीटिंग है, तो हम आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक तो क्लास होगा ही, मगर नेक्स्ट वीक में थोड़ा अनसर्टेनिटी है। हम कब लेंगे हम एक दिन पहले बता देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है यस सर। भाई भाई, हमको याद दिला देना, ये इंटरप्ट तक पढ़ाया अभी तक। एक्सटर्नल इनिशियलाइजेशन सिग्नल खत्म नहीं हुआ, बहुत सारा पिन है, बहुत सारा पिन है एक्सटर्नल इनिशियलाइजेशन सिग्नल में, बहुत सारा पिन है। कितना पिन हुआ? 32। अभी भी 8 पिन बाकी है, 6 इधर और 2 है सीरियल आयो पोर्ट में, याद रखना। हाँ
ठीक है, चलो, आई एम एंडिंग द क्लास टुडे. आई विल बी मीट अगेन either next week or next to next week. ओके सर अपलोड कर दीजिएगा इस वीडियो को. हाँ, ऑब्वियसली कर देंगे. पहला भी 2 वीडियो अपलोड किया है. देखो हमको. हाँ सर, वो देख लिया सर. अंकिता, गिव मी द अटेंडेंस. ओके सर. और क्या बोल रहा था, मगर बहुत सारा जन क्या किया ना, देखो अभी तक गूगल क्लासरूम में ही ऐड नहीं हुआ. 13 जन, मतलब मैं कल रात में देख रहा था, 2 बज रहा था तब हम देख रहा था, तो उस टाइम में देख रहा था, मतलब 13 जन सिर्फ ऐड हुआ. बहुत सारा जन नहीं ऐड हुआ. ऐड हो जाओ. मिला था, अब मिल गया सर, हो गए हैं ज्वाइन सर. कोड मिला क्यों? हम तो इनविटेशन सबको मेल में किया है, सबका इनविटेशन गया है सबका मेल में. ऐसा बोलो मत. नहीं आया था सर. सबसे पहले शायद जॉय कुमार ना कौन ऐड हुआ था सबसे पहले में. तो हम तो इनविटेशन तुमको भेजा था, तुम नहीं मिला था तब तुमको. नहीं सर, नहीं मिला था सर. जॉय कुमार को नहीं मिला था? मिला सर. जय कुमार किया होगा सर. उत्सव को नहीं मिला? यस सर, आया था सर. सर दिस इज इंडिया, मेल लोग चेक नहीं ना करते. सर 25 लोग हो गया अभी सर. अच्छा ठीक है, पूरा करने का कोशिश करो. और तुम्हारा क्लास का अटेंडेंस इतना खराब क्यों है? अच्छा नहीं लग रहा है हमारा. पानी गर्म नहीं हो रहा है इसमें. 70, 80, 100, 200 बच्चा स्टूडेंट रहेगा तब ना क्लास में अच्छा लगेगा. सर तो हम लोग के क्लास में उतना नहीं है स्टूडेंट. अरे नहीं है तो दूसरा कोई कॉलेज से मंगवा लो. बीआईटी सिंधरी फिंदरी से मंगवा लो. उतना थोड़ी अच्छा पढ़ाई होता है, हमको पता है सब कुछ कॉलेज में क्या होता है नहीं होता है. मंगवा लो उधर से. 100 बच्चा को उधर से मंगवा लो. ठीक है सर. ओके सर. सर वहाँ का कोई स्टूडेंट क्लास करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो हम टीचर है, तुम लोग जितना लेना चाहते हो हम 100% देने के लिए तैयार है. 100% के लिए, चाहे हम कॉलेज में रहे या ना रहे, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है. हमको क्लास लेना बहुत अच्छा. देखो बहुत सारा को ये रहता है ना, जो